ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಏನೋ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ವಕ್ತಾರರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ತ್ರೀ ಬಿಗ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಸರ್ ಆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೇನೆಂದರೆ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿವ್ಯಾಂಪ್ IT ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1961 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೇ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ 10 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ದೇ ಕುಡ್ ರಿಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು 10 ಇಯರ್ಸ್ನ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ 50 ಲಕ್ಷ ಅಬೌವ್ 50 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿತಿನ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್, 6 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 2-3 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಫ್ ದೇ ಓಪನ್ ಆಫೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಮುಂಚೆ 40% ಇತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಅದನ್ನು 35% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅವ್ರ ಫಾರಿನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿಲಿ ಕೆಲವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಜ್ಯೂನು ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿದೆ, ಏನೋ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸಚ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಒಂದು 3 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಅವರು ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿನೇ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 15% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿನ 15% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ನ 6% ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ 6.4 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸು, ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ಈಗ ಈ GST ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು GST. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ GST ಏನು ಈಗ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಅದೆಷ್ಟು ಏನಿದ್ರು GST ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವರು ಯೂನಿಯನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ GST ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದಂದರೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆನ್ 25 ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೇರ್ ಅರ್ತ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ EVಸ್ಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೌ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನಂತಂದರೆ, ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈನಾ, ದೇ ಬ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈನಾ, ಆಲ್ಸೋ FDI. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರು ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಅವ್ರೇನಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಅಲೋ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है. ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है. पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है. ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है. इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी. ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है. ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है. इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. इस बजट से छोटे व्यापारियों, MSMEs को, यानी कि लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा. बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है. इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी. साथियों,
रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़ा, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में एमएसएमईज के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। साथियों, ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड हो, एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। साथियों, रिकॉर्ड हाई कैपेक्स इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स, देश में नए सैटेलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट प्लान्स, इससे देश में नए इकोनॉमिक हब विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे। साथियों, आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर है।
इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और भारत में टूरिज्म के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। टूरिज्म क्षेत्र गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई अवसर लेके आता है। इस बजट में टूरिज्म क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया गया है। साथियों, एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी वृद्धि का फैसला लिया गया है। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। साथियों, देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे। साथियों, इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं। इससे एक और छोटे किसानों को फल, सब्जियों, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे, तो दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल, सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है। साथियों, देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सैचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी। इसका लाभ देश के सभी राज्यों के दूर दराज गांवों को मिलेगा। साथियों, आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ಪರಿಪಾಠದಂತೆ ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸರ್ವಸ್ಪರ್ಶಿ ಬಜೆಟ್ ಇದು. ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಆಗರ.
ಮ್ಯಾನ್ಯುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.